ठीक है, छोटा चैप्टर एलएलपी हमने डिस्कस किया। क्या है एलएलपी? क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ what and what, combining the features of what and what, partnership and company. very good, partnership and company. Yes sir, in partnership or sole proprietor, what are the financial statements sir? Trading P&L account, very good, balance sheet. In case of partnership, additionally we have P&L appropriation. So this is balance sheet. Look here. This is trading and P&L. Yes. Debit all expenses, credit all incomes. Yes. You find gross profit, net profit. Yes. Sir, in case of LLP, what will be the format? Sir, here you are debiting expenses, crediting income. Yes or no? This is called horizontal format. You write side by side. Yes. But in case of company accounts, sir, LLP is nothing but a company. Yes or no? Company accounts you will encounter this in final. Okay. But format you can see here. Sir, instead of writing side by side, you write incomes above, expenses नीचे. Clear? Incomes above, expenses नीचे. Nothing but first we will go with incomes, then we will go with expenses. Clear? Clear? Similarly, liabilities, assets. Yes or no? Here we write first liabilities, then नीचे assets. Okay? This is the only difference, nothing more. You call this as statement of income and expenditure. You call this as statement of assets and liabilities. Not balance sheet. You call it as statement of assets and liabilities. Clear? Rest of everything is same, similar to preparation of final accounts. Okay? So come to page number 411. Page number 411. Fast. Question number 46. Yes? Mohit, read the question. PNQ are the partners of a limited liability partnership. Sir, limited liability partnership, they will clearly mention LLP. Okay? Dealing in electrical goods. The following is their trial balance as on 31st March. Sir, what they have given? Trial balance. Sir, from trial balance, preparing balance sheet or P&L account, trading account, is this a new task or old task? Old task. You have already seen this, yes or no? Come to the format. There is an additional information also. This is a old trial balance. Sir, trial balance has been tallied. Very good. No adjustments. But नीचे there are adjustments also. Okay. ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, सीधा. ठीक है. ट्रायल बैलेंस में कहीं पे सस्पेंस अकाउंट नहीं है ना. हाँ, तो मतलब एवरी एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड, यू कैन इशू. ओके. एरर्स नहीं है, रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं है. तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक वगैरह सब कुछ दे दिया. नॉट सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटरशिप आल्सो. यस, सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटरशिप दे गिव द एडजस्टमेंट. What they are asking me to prepare, read the last line. Considering the additional information provided above, you are required to prepare the statement of Sir, statement of income and expenditure account. This one, because this is LLP. Yes. What is the other one? statement of assets. Assets and liabilities. Sir, now come to the answer comes statement of income and expenditure. Can you see? Starting with income. Nothing but here in what are the incomes in trading and P&L? What are the incomes in trading and P&L? Sales. Starting with sales, yes or no? नीचे देखो gross turnover. Sir, turnover is nothing but sales, yes or no? Turnover है. उसके बाद other income है. Other income is nothing but P&L income, yes or no? Income on investments. But here, sir, income includes both direct and indirect. Here you have this bifurcation, trading and P&L. Here you don't have bifurcation. All incomes you start with all incomes,
Left, you start with all expenses, you reduce both of them, you get profit. Okay? Sir, what profit do you get? Sir, what profit do you get? You get PBT, profit before tax. Okay? Then you have to reduce tax, you get PAT. Where you have seen this? PAT. Clear? This is the only difference. In trading P&L we call them as gross profit, net profit. Here normally we call it as, before this there is one more item. I'll tell you. Earnings before interest and tax minus interest. This is earnings after tax or profit after earnings before tax, profit before tax minus tax. This is profit after tax. Marginal costing, we are seeing marginal costing. Yes or no? Marginal costing में देखा है ना, EBIT minus interest is equal to EBT or PBT minus tax is equal to PAT. Yes or no? Similarly here also. You can see the last one, PBT less provision for tax, PAT, PAT. Clear? The rest all are the same, income, expenses. Okay? All direct and indirect expenses in the expenses side, all the incomes, direct and indirect incomes on the top. All incomes on the top, all expenses on the bottom. Clear? You get profit, transfer it to what? Reserves and surplus. Clear? Similar. Now come to statement of assets and liabilities. Starting with liabilities, yes or no? Here starting with assets, liabilities and assets, yes or no? Now here you start with liabilities. So liabilities in the sense, what do you have? Capital, sundry creditors, loans, etc. Yes. Similarly here, partners funds, liabilities. Here, top you have liabilities, bottom you have what? Assets. This is as simple. As simple. Okay. So LLP is a small chapter. I just wanted to cover it with you. Okay. Format is very very important. Sir, LLP book they are the questions you are forming in this format and you are preparing the balance sheet, they will strike the whole subject. Format is very very important because LLP is graded by a separate act, 2008 LLP Act. As per the LLP Act, Form 8, there is one separate form. As per the form, they have prescribed this formats. Statement of income and expenditure, statement of assets and liabilities. Clear? Clear? This is quickly the LLP part. Rest you can check. Now come to JLP. Sir, what is JLP? Joint life policy हमने डिस्कस किया था ना? Yes or no? Joint life policy. Sir, why joint life policy? हाँ? joint life policy एक फैमिली में एक इंसान के पास joint life policy. हाँ, रिटायर हो जाते हैं, डेथ हो जाता है, तो क्या ऑल ऑफ ए सडन पेमेंट करना पॉसिबल नहीं है फॉर्मेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो इसलिए फॉर्म पॉलिसी ऑल पार्टनर्स के लिए वो वाला हम डिस्कस करेंगे ना। जाओ तो एक बार जॉइंट लाइफ पॉलिसी चैप्टर जाओ, पेज है वो पेज नंबर, these are small chapters huh? Covering this quickly. Page number 327, 4.4. So what we have discussed now is, till now we have discussed 4.8. Following me, 4.1 एडमिशन हो गया था, yes or no? 4.8 LLP हो गया, yes. Now we are discussing 4.4. These are small chapters, so I am covering them quickly. Sir, JLP. आगे कौन सा पेज नंबर?
7 सर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी हो सकता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो सकता है, तो हमने डिस्कस किया था मेजॉरिटी इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी. सर here there are two methods. Can you see that there are two broad methods of JLP accounting? Can you see that part? Yes. What are those methods? Mohit, read. JLP is not treated as an asset in the books of the firm. JLP is treated as an asset. Method A not treated as an asset. Sir, not treated as an asset. What you will treat it as then? Expense. Not liability, expense. Sir, हम लोग कुछ पेमेंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम. Yes. Sir, insurance premium generally is an expense. Yes. So method A is related to expense. Sir, expense होने से क्या करेगा? P&L को राइट ऑफ करेगा. ऐसा ना? सर एक्सपेंस नहीं है, क्या हो सकता है? डेबिट बैलेंस है ना, एसेट हो सकता है. एसेट हो सकता है. समझ? ठीक है. तो फर्स्ट मेथड में सर एसेट नहीं है, तो मतलब क्या P&L को राइट ऑफ करना है. सर मेथड बी में एसेट है, तो क्या होगा? एसेट जैसे ट्रीट करना है, तो इसलिए बैलेंस शीट में दिखेगा. ठीक है. सर बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखेगा? Suppose I have taken policy today for 5 years. Okay. I am following calendar year. I have taken policy on January 1st. I have taken policy for 5 years. So policy amount is 5 lakhs. ठीक है. At the end of first year, if I surrender, I get 1 lakh. At the end of second year, if I surrender, I get 2 lakhs. At the end of third year, if I surrender, I get 3 lakhs. Yes. At the end of fourth year, if I surrender, I get 4 lakhs. At the end of fifth year, even if you don't surrender, you get the full policy. But in between, if any partner retires or dies, you have to surrender the policy. Yes or no? Because for the payment. Then you will realize only the surrender value. Yes or no? So indirectly in the asset side, you have to show the balance as surrender value. Clear? Surrender value. Clear ना? सर asset होने से बैलेंस शीट में क्या अकाउंट दिखेगा? JLP अकाउंट. Okay. Now come to method A. Entries page number 3 to 8. Quickly I am giving the overview of the entries. सर प्रीमियम पे किया था, क्या जा रहा है बाहर? बैंक, कैश और बैंक. ऐसा ना? सर JLP अकाउंट डेबिट हो गया. ऐसा ना? सर JLP अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट. ऐसा ना? सो नॉमिनल अकाउंट क्लोज करके P&L अकाउंट भेजेगा. ऐसा ना? P&L to JLP. Clear? Clear that entry? हाँ? Clear ना? हाँ. सर अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया है, ठीक है, रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है, ठीक है, एडमिशन भी हो रहा है, हाँ, इस सभी केसेस में क्या होगा? जो 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 ऑलरेडी प्रीमियम पे कर रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पे कर रहा है. सो द एसेट व्हिच इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट और द बेनिफिट ऑफ द JLP गोस टू टेक द एग्जिस्टिंग पार्टनर. तो नीचे एंट्री देखो. Sir, when they are raising of JLP, sir, raising of JLP in the sense, raising of JLP in the sense either premium payment पे करने से JLP को डेबिट होगा. ऐसा वो रह जाएगा. अगर एसेट होगा तो एसेट में रह जाएगा, सरेंडर वैल्यू ऐसा हो. सर उसको अभी ओल्ड पार्टनर शेयर करना है. फिर राइट ऑफ करने के समय क्या होगा? न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में शेयर होगा. सर इनडायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स विल गेट बेनिफिट. क्लियर? दिस इज द एंट्री. और सर JLP नहीं है, कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, तो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट मिलेगा, गेनिंग पार्टनर लूज करेगा. ऐसा हो? ऐसा हो? इनडायरेक्टली कैपिटल एडजस्टमेंट. सिमिलर टू गुडविल. सर गुडविल वो लेके आ रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट से हम ले लेते हैं, तब क्या होगा? उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको क्या पार्टनर से सेम है सेम. ठीक है. सर डेथ होने से क्या आएगा? मैच्योरिटी वैल्यू आएगा. सर एडमिशन रिटायरमेंट, हाँ, एडमिशन रिटायरमेंट और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सर रेशियो चेंज कर रहा है. सर पार्टनरशिप बिड को मॉडिफाई कर रहा है, तो मॉडिफाई करने से भी प्रीमियम का चेंज हो जाएगा ना. ऐसा हो? बिकॉज प्रीमियम को P&L को डेबिट कर रहा है. ऐसा हो?
इनडायरेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफेक्ट हो रहा है सर। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है बीट की बेसिस पे तो हमने जेएलपी का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, समझ गए। तो इनडायरेक्टली एडमिशन रिटायरमेंट चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आल्सो यू हैव टू टेक द जेएलपी ट्रीटमेंट, समझ गए सर। मैच्योरिटी के समय ये डेथ के समय क्या आएगा, पूरा मैच्योरिटी वैल्यू आएगा, पूरा पॉलिसी वैल्यू आएगा, नॉट सरेंडर वैल्यू। Clear? So JLP receivable to existing partners. Clear? Clear? Sir, जब बैंक आएगा वो JLP receivable को कैंसिल कर देगा। Clear ना? This is the first method, sir. When treating it as expense, yes or no? Nothing but not an asset. Yes or no? Sir, not an asset in the sense you have to charge it off to which account? P&L. This is very easy. Okay? Now second method, sir. When you treat it as an asset, when you treat it an asset, yes sir, sir, I have paid premium. Premium, in my example, 5 lakhs is the policy amount for 5 years. Yes, what is the surrender value? At the end of 1 year, at the end of 1 year, surrender value is 1 lakh. Here, surrender value is 2 lakhs, 3 lakhs, and so on till 5 lakhs. Clear? सर प्रीमियम पे कर रहा है, ठीक है। I'll explain this with the help of sum directly, so that you will not get confused. Come to sum number 21. Second method I'll explain ना, okay? सर asset में कैसे होगा? I'll explain it. Here we have live example. Read this question. Two is to one, sir. On 1st January 2019, they took out a joint life policy of 2 lakhs. 2 lakhs, sir. Annual premium of 10,000 was payable on 1st January. Sir, annual premium कितना है? 10,000. 10,000. So per annum, I mean every year they have to pay 10,000. Last premium was paid on 15 January 2022. Last premium was paid on 15th January 2022. Sir, when they have started, when they have taken the policy? 1st January 2019, yes or no? So from there they are paying, when they are paying, sir? Premium when they are paying? No, premium they are giving the sum. What is the premium amount? 10,000. They are payable, they are paying on which date, sir? 1st January every year. So 2019 में एक प्रीमियम हुआ है, yes or no? 2019 में एक 10,000 है, 2020 में एक 10,000 है, yes or no? 2021 में एक प्रीमियम पे किया है, 2022 में भी किया है कि नहीं किया? किया है, बिकॉज प्रीमियम वॉज पेड ऑन लास्ट प्रीमियम 15 जनवरी 2020, yes or no? 2022 सर टोटल प्रीमियम कितना पे किया है? कितना? 40,000 किया है, yes or no? कैसा मतलब? रोहित कब मर गया? देखो रोहित डाइड ऑन 5 मार्च। सर ये प्रीमियम पे होने के बाद रोहित मर गया, ठीक है। सो सर मर गया तो क्या आएगा? मैच्योरिटी वैल्यू आएगा, यस, फुल वैल्यू आएगा, नॉट सरेंडर वैल्यू, ऐसा नो, बिकॉज ही डाइड, पॉलिसी गेट्स एक्टिवेटेड, यू विल गेट द मैच्योरिटी वैल्यू, यस और नो? हां बोलो बात। And policy money was received on 31st March 2020. 31st March, he died on 1st March. They have started the policy proceedings, everything, and then they received the claim on 31st March. Okay. Surrender value of the policy as on 31st March every year. समझ गए? सर surrender value दे रहा था, बोलो। 2019 nil. Sir, 2019 is on 1st January you have paid 10,000. On 31st March 2019, if you are going to surrender, you will get nil. Yes? हाँ. 2020 rupees 2,000. 2020 सर ईयर जनवरी में पे किए 10,000, अगर 31st मार्च 2020 में जाके पूछेगा कितना मिलेगा? 2,000। सर लेकिन अभी तक प्रीमियम कितना पेमेंट किया? 20,000 पेमेंट किया, तो सरेंडर वैल्यू कितना है? 2,000।
So you have to keep in mind that surrender value is always less than the total amount of premiums paid till date. Because immediate benefit ना you are surrendering in between. समझ गया? हाँ. 2021 में अगर सरेंडर करेगा तो इधर 5000 मिलेगा. 30,000 पेमेंट किया है तुमको 5000 आएगा. ठीक है? हाँ. Joint life policy counts on 31st March every year, assuming that premium is charged to P&L account every year. तो follow me. सर P&L account charge कर रहा है तो मतलब not treated as an asset. ऐसा नहीं. सर not treated as an asset. JLP to bank, हाँ? P&L to JLP. Clear sir? Now here they are asking you only the JLP account, not P&L account. हाँ? सर JLP account में क्या होगा? मेथड 1 में मैं बोल रहा हूँ. मेथड 1 में JLP अकाउंट में क्या होगा ये वाला देखना है. JLP अकाउंट सर जब पेमेंट किया JLP टू बैंक ऐसा ना 10K यस ना. Similarly in that year you will transfer it to P&L. No balance. This is 2019. Similarly second year 10K transfer it to P&L. Third year 10K transfer it to P&L. Yes. Fourth year 10K transfer it to P&L. Here it is bank account. Here it is P&L account. Clear sir? The first method. This was not given in the book. You have to grab this account. Clear? Sir on the fourth year what happened actually? On the fourth year. फोर्थ ईयर पेमेंट प्रीमियम पे करने के बाद मैं बोल रहा हूँ 2 लाख आ गया था. यस और नो? 2 लाख आ गया. 2 लाख आ गया तो क्या होगा? 2 लाख आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट होगा. तो इसमें क्रेडिट आएगा 2 लाख. 2 लाख इधर है. इस 2 लाख को ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेगा. क्लियर? क्लियर? They have given you only the last year accounting treatment, but you have in the exam you have to show the whole. Yes or no? Follow me. सर डेबिट हो रहा है क्या? JLP टू बैंक. Here P&L to JLP. Nothing, no balance in that. हाँ? सर सेकंड मेथड देख लो अभी. Premium is debited to what? JLP account. And the balance of JLP account is adjusted every year to surrender value account. सर ये एग्जाम्पल देखो 2010 पे कर रहा है. फर्स्ट ईयर देखो सर JLP टू बैंक. यस 10,000. क्लियर? सर बाद में क्या कर रहा है? बाय P&L 10,000. सर वही surrender value is nil. Surrender value is nil. So the whole 10,000 you have to transfer to P&L. Asset side JLP account should represent at what value? Surrender value. Sir surrender value is nil. Balance amount you should take it to the P&L. Clear? Now second year 10,000 की पे किया. सेकंड ईयर surrender value कितना है सर? 2,000. सर 2,000 surrender value तो बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन. सर बैलेंस रहेगा उसमें JLP अकाउंट में. वो एसेट साइड जाएगा 2,000. बाकी 1,000 कहाँ जाएगा सर? P&L में जाएगा. समझ गया? सर indirectly what you are doing, the excess amount of premium paid over the surrender value you have to charge it to the P&L account. Clear? Because you have to show the JLP asset at surrender value. Clear sir? थर्ड ईयर देखो ओपनिंग बैलेंस 2,000 है because this is the surrender value of last year. yes or no? उसमें अभी पेमेंट प्रीमियम कितना किया है? 10,000. सर टोटल 12,000 है लेकिन क्लोजिंग surrender value कितना है? 5,000. सर बैलेंस कितना जाएगा P&L में? 7,000. सर 5,000 goes to balance sheet, 7,000 goes to P&L. बैलेंस शीट एसेट साइड में 5,000 जाएगा. समझ गए? समझ गए? सर थर्ड एंड फोर्थ 1 2 3 फोर्थ ईयर सर 5,000 ओपनिंग बैलेंस है. 10,000 प्रीमियम पे किया. यस और नो? सर क्लोजिंग surrender value नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डेथ हो गया. तो कितना आएगा? 2 लाख आ जाएगा. 2 लाख से सर 15,000 माइनस करके 1,85,000 शेयर करें. और then 15,000 you can transfer to P&L and then 2 lakhs you can transfer to P&L. both are same. 15,000 debit to P&L, प्रॉफिट कम हो जाएगा 15,000. 2 लाख शेयर करो
2 लाख भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर कर रहा है, 18,000 भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिडक्ट हो रहा है, तो इनडायरेक्टली 1,85,000 शेयर हो रहा है। समझ गए? क्लियर सर? अंडरस्टूड ना? एनी डाउट हियर? नो सर। नाउ कम टू दैट एंट्री, पेज नंबर 329. now you can explain this better. Sir, JLP to bank, yes or no? P&L to JLP only excess amount over the surrender value, not the whole value. Clear? Following me na? Here they are not mentioning JLP premium, they are mentioning what? Sir, first method और second method में difference क्या है? फर्स्ट मेथड में अकाउंट का नाम क्या था? JLP प्रीमियम. सर प्रीमियम is an expense. Here you are writing JLP accounts because it is an asset. Understand the difference? Clear? Now you are reducing, I mean P&L to JLP, this is the proportionate value, I mean the balance value, nothing but premium amount paid over the surrender value that goes to the P&L. So this is the net amount only, not the whole amount. ठीक है? Suppose for example JLP to bank, in this example what is the amount? 10,000. Now P&L को कितना जाएगा सेकंड ईयर में? 8,000 जाएगा. So 8,000 to JLP second year, second entry. Here 2,000 goes to which account? Balance sheet जाएगा. Very good. Sir, now in approach to JLP reserve method. Here JLP reserve method. First, sir, what is the first? I mean this is first method is expense method. This is 2A. I can say 2A is surrender value method. 2B is JLP reserve method. Sir, JLP reserve method क्या है? फर्स्ट एंट्री देखो JLP टू बैंक. क्लियर? हाँ? अभी सेकंड एंट्री देखो P&L अप्रोप्रिएशन टू JLP रिजर्व. सर अमाउंट कितना पे किया उतना एग्जैक्टली P&L से दूसरा रिजर्व भरना चाहिए. ओके सर. एसेट साइड बैलेंस शीट है ना ये? सर एसेट साइड इधर JLP अकाउंट दिख रहा है. यस, इस साइड JLP रिजर्व दिखेगा. समझ गया? 2B, this is approach 2B. Now JLP in 2A approach you are reducing the excess of premium paid, yes or no? Here also you will reduce the excess premium paid over the surrender value. So indirectly these both values will appear at surrender value. Clear sir? Clear ना? So check the entry now. थर्ड एंट्री क्या होगा? P&L to JLP नहीं होगा, JLP reserve to JLP होगा. Because in case of P&L you have already the reserve. Okay? Both will be the same for the excess amount. इसके लिए सम नहीं था लेकिन पूछ सकते हैं एग्जाम. समझिए? Sir, I am explaining once again. First method is expense method. Directly take it to P&L, no headache. 2A surrender value method. Only JLP accounts appear in the balance sheet. 2A. Sir, at what value it will appear? Surrender value. Clear? Excess of premium paid over the surrender value is transferred to which account? P&L account. Sir, 2B. What is this method name? JLP reserve method. Sir, इस केस में क्या होगा? दो अकाउंट्स होगा, JLP अकाउंट, JLP रिजर्व अकाउंट. Sir, JLP अकाउंट, assets है, JLP रिजर्व liabilities है. Excess of premium paid over the surrender value transferred to reserve, not P&L. Clear? Clear sir? Clear? Because reserve is already created from P&L indirectly. So reserve is available with you. You have to adjust from the reserve, not from P&L. Clear? Kashyap, doubt है? P&L appropriation to JLP reserve. This. Sir, JLP to bank premium is paid. Yes or no? First entry. Sir, second entry क्या है? Reserve create कर रहा है. Sir, क्यों create कर रहा है? Same asset के कितना है? Liabilities में भी उतना ही दिखाना है.
सर प्रीमियम कितना पे किया था उतना एग्जैक्टली रिजर्व क्रिएट करो, ठीक है, ठीक है। ये रिजर्व क्रिएशन है सेकंड वाला, ऑलरेडी एसेट है फर्स्ट एंट्री में, सेकंड एंट्री में रिजर्व है, क्लियर, ये सर ना, तो एसेट लायबिलिटी में दिख जाएगा सीधा। बट excess of premium paid over the surrender value you have to reduce the proportionate amount because JLP amount will reflect at surrender value. JLP and JLP is both not at premium amount. Clear na? This is another small chapter. Only we have one sum. I have explained this sum. Clear? This is one small chapter. ठीक है? Now come to retirement. ये सर 4.1 डन, 4.4 डन, 4.8 डन, ओके। नाउ कम टू रिटायरमेंट। सर एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या है फर्क पड़ेगा, क्या डिफरेंस है? एडमिशन में न्यू पार्टनर आएगा, रिटायरमेंट में न्यू पार्टनर जाएगा। सर जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या फॉर्म को? रिवैल्यूएशन से मेरे को रिवैल्यूएशन रहेगा, गुडविल रहेगा, जेएलपी होने से जेएलपी रहेगा और कैपिटल एडजस्टमेंट्स रह सकता है, ये सब और क्या रह सकता है? एडमिशन और रिटायरमेंट में और एडिशनल क्या फर्क है? क्या क्या? प्रॉफिट शेयरिंग बदल जाएगा, गेनिंग रेशियो करना पड़ेगा, ये सब रिटायरमेंट होने से क्या समय बाद में क्या होगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करेगा, गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट, रिटायर होने के समय एक फर्म पे करना है या वो लेके आएगा? पे करना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एडमिशन में वो लेके आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। सर रिटायरमेंट और डेथ में क्या होगा? पेमेंट करना पड़ेगा। सर एसेट्स में नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, क्या होगा? हो सकते हैं ना, एसेट्स पूरे इन्वेस्ट हो गया, कहीं पे फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया। सर बैंक बैलेंस है 10 रुपया, कैश बैलेंस है 5 रुपया, पेमेंट कैसे करेंगे? हाँ, करंट अकाउंट्स नहीं, लोन ले सकता है वो सम के हिसाब से। बट हियर रिटायरमेंट और डेथ के केस में एक सेक्शन एप्लीकेबल होगा पार्टनरशिप एक्ट का, ठीक है। सेक्शन नंबर 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर वेयर डू यू हैव दिस? हाँ, सेटलमेंट ऑफ फाइनल बैलेंस ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। सर पेज नंबर 292 सेक्शन 37, ओके, सेक्शन 37। Sir, what does this section say? Sir, when the partner is getting retired or died, I mean, he is dead, firm has to pay the amount immediately. Yes or no? But maximum cases firm cannot pay because retirement, in case of retirement, they can perfectly plan. Suppose he is going to retire 3 months later. They can save the fund now and then at the time of retirement this is possible. They can give the whole fund to the retiring partner and in cash. They can settle him in cash, no problem. But in death, sir, you cannot estimate, na? Suddenly death comes, because 1 crore has to be paid. How they will pay? Because firm does not keep 1 crore balance in either bank or cash. Yes or no? They keep in investment, gold, land, something. Yes or no? So because of this section came. Sir, what will happen? Sir, immediately the retiring partner or the dead partner is not paid. The retiring partner or the executor of the dead partner. Follow me? Who is executor? Nominee. Death case में nominee को मिलेगा पैसे. So you call him as executor. Okay. Retiring partner or executor has the right to claim 6% interest per annum. Sir, this is simple interest, not compound interest. Okay. Or share in profits. Whichever is higher. Whichever is higher.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ना 6% इंटरेस्ट पर annum सर सोच लीजिए 1 लाख रिटायरमेंट के समय 1 लाख फाइनल बैलेंस आया सेटलमेंट का बैलेंस सर 1 लाख तुरंत पेमेंट नहीं किया तो फर्म उस 1 लाख को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो उस फर्म का अकाउंट में लायबिलिटी साइड 6% लोन फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर ऐसे दिखेगा लायबिलिटी साइड सर हर साल उसको कितना मिलेगा 6% इंटरेस्ट मतलब 6000 मिलेगा सर वो 1 लाख यूज करके ये लोग प्रॉफिट बना रहा है क्योंकि वो 1 लाख नथिंग बट बैंक से लोन लिया एग्जाम्पल बाहर से बैंक से 1 लाख लोन लेके आया था उससे बिजनेस करेगा प्रॉफिट आएगा ये सब सर 1 लाख प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा वो दोनों कैलकुलेट करके जितना ज्यादा है वो क्लेम करेगा रिटायरिंग पार्टनर और वो एग्जीक्यूटर क्लियर सर नाउ कम टू पेज नंबर 341 they have this some hidden somewhere in the example on this they have one small sum fast Rinki, can you see this one unsettled capital C 52,000 can you read that एकदम लास्ट में that is an example है ऊपर सेक्शन applicability of section 37 दिया है ना maximum of 6% interest or maximum of 6% interest or share in profit whichever is higher मतलब maximum in the sense higher amount yes Kashyap can you see this example पढ़ो Unsettled capital of C rupees 52,000. हाँ Date of retirement 13/9/21. हाँ Financial year 2021 to 2022. हाँ Net profit earned by the firm after C's sir retirement. after C's retirement show me the earning this net profit yes or no what is the net profit amount 25,000. sir 25,000 indirectly they to earn this 25,000 they are using C's capital also unsettled capital yes or no हाँ कैपिटल ऑफ ये कितना है 76,000 सर टोटल कैपिटल कितना है 57 plus 76 plus 52 you have to get total yes कितना है 1,82,000 आया था क्या 1,82,000 देखो टोटल सर 1,82,000 एम्प्लॉय करके वो 25,000 प्रॉफिट ऐड किया है सर 1,80 आ रहे कई बार आए क्या हाँ 1,85 सोच लो 1,85 हाँ 9 plus 6 हाँ 15 होगा लास्ट में 5 आएगा ठीक है 1,50,000 ना 1,85 सर 1,85,000 सर 1,85,000 एम्प्लॉय करके वो 25,000 प्रॉफिट यूज कर रहा है यस और नो सर ना 52,000 के लिए प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कितना है वो कैलकुलेट करो समझ गया सर 25,000 divided by how much 1,85,000 into 52,000 7027 आया था आंसर समझ गया कॉन्सेप्ट समझ गया सर टोटल कैपिटल एम्प्लॉय करके वो लोग 25,000 प्रॉफिट निकाला है सर मेरा अमाउंट इन्वेस्ट करके कितना निकाला है प्रोपोर्शनेटली चेक करना है 7027 सर इंटरेस्ट कितना है एज पर सेक्शन 37 सर क्वेश्चन में नहीं रहेगा 6% याद रखना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन 37 अप्लाई होगा इस केस में हाँ 6% कितना है सर 31 सर ये फाइनेंशियल ईयर बोला है रिटायरमेंट कब हो रहा है 30 सितंबर के बाद कितना महीने काम किया है 6 महीना तो 6 महीने के लिए प्रोपोर्शनेट कितना है 1560 सर 1560 7027 हाईएस्ट अमाउंट लेके जाएगा वो सो 7027 में हैज टू बी पेड क्लियर सर क्लियर ऑन दिस सेक्शन 37 क्लियर okay they might ask you for 2 marks or 4 marks also in anything section 37 याद रखना ठीक है अभी कम टू पेज नंबर
एक रिटायरमेंट सम कर लेंगे। पेज नंबर 296 सर, सम नंबर 11 सम नंबर क्या है सर? 11। दिस इज सम ऑन रिटायरमेंट। पेज नंबर 296 पेज नंबर 11 you read this one, read sorry, illustration yes compass, cone and circle are sir, who are the partners? compass, cone and sir, circle compass, cone, circle are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. 3:2:1. So what is the existing profit sharing ratio? Sir, old PSR profit sharing ratio 3:2:1. The balance sheet of the firm as on 31st December. Sir, 31st December, sir, what they are following, calendar year or financial year? Calendar year. They are following calendar year. They will close books at the end of every December. So मतलब year कब होगा? January to December. Clear ना? कभी कभी एग्जाम में जनवरी कैलेंडर ईयर भी देते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी देते हैं, अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है? हाँ 2021 was as follows. हाँ Liabilities, capital account, compass 40,000, कौन cone सर्किल 60,000, circle 20,000. सर, टोटल 1,20,000 इज द कैपिटल अमाउंट। ठीक है? हाँ There is sundry creditors 30,000. नॉट सन्ड्री क्रेडिटर्स, गलती थोड़ा सा नीचे हो गया, प्रिंट है बीच में रिजर्व है। रिजर्व कितना अमाउंट है? 30 होगा सर। सर वो थोड़ा प्रिंट नीचे आ गया था, फोन में देख लीजिए अच्छे से। रिजर्व 30 तो सर रिजर्व है, बैलेंस शीट में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। वेरी गुड सर। लायबिलिटी साइड में हमेशा रिजर्व देखना है। थोड़ा एरो मार्क जैसा ऐसा करो, रिजर्व 30,000 तक लेके आना, थोड़ा प्रिंट नीचे आया था। ठीक है? क्वेश्चन में ऐसा कर लो थोड़ा सा। ठीक है? सैलरी क्रेडिटर्स कितना है? 60,000। सर रिजर्व है तो क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। लायबिलिटी साइड में हमेशा रिजर्व देखना है। एसेट साइड में क्या देखना है? गुडविल। हाँ, इसमें गुडविल है क्या? देखो नहीं है। हाँ वेरी गुड। एसेट्स क्या है? Assets, machinery at cost 50,000, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 8,000, हाँ। 43,000. हाँ, फर्नीचर कितना? 1000, सैलरी डाल 80,000, प्रोविजन फॉर डोंट प्रोजेक्ट्स 3000। ठीक है? स्टॉक कितना है? Stock 50,000। कैश एट बैंक, सर बैंक बैलेंस कितना है? 40,000। दिस इज द बैलेंस शीट, ओके, फॉर द कैलेंडर ईयर। नाउ गो अहेड। On 31st March, सर कब रिटायर हो रहा है? 31st March 2000. 31 मार्च को हो रहा है। सर बुक्स कब होता है? जनवरी टू दिसंबर, 3 महीने के बाद रिटायर हो रहा है, ऐसा ना? हाँ On 31st March 2022, Cone retired. सर, कौन इज गेटिंग रिटायर्ड? हु इज कौन? कॉम्पास, कौन, सर्किल, ये बंदा बीच में जो 2 है ना, वो बंदा रिटायर हो रहा है। हाँ Cone retired and compass and circle continued in partnership. सर, कंटिन्यूड इन पार्टनरशिप। 20 चलिए रिटायर हो गया लेकिन कंटिन्यू हो रहा है। अगर कंटिन्यू नहीं होगा क्या होगा? डिसॉल्व होगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया यार, रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा। ये लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो इसलिए चल रहा है, नहीं तो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है? हाँ Continued in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 ना सर, अभी गेनिंग रेशियो समझना है। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तुरंत, फास्ट, वेरी फास्ट। नहीं इधर तक रुको, तुरंत गेनिंग रेशियो देख लेंगे। फास्ट सर, गेनिंग रेशियो इज नथिंग बट व्हाट? हाँ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नॉट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है? बिकॉज इट इज रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट होने के बाद क्या होगा? और एग्जिस्ट न्यू पार्टनर्स बेनिफिट होगा क्योंकि शेयर कम हो जाएगा ना। सर, गेनिंग रेशियो इज नथिंग बट व्हाट? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नथिंग बट 3/5 माइनस 3/6। सर इसको कैलकुलेट कर लो, एक आ जाएगा।
कितना आया था? 3 by 30. 3/30 आया था क्या? 3/30 ये का बी का कितना है? 2 by 30. सॉरी 2 by 30. 2 बाई 2 by 5 minus 2 by 5. हाँ 2/5 माइनस 1/6 है ना, 1/6 होगा, नॉट 2/6 बिकॉज ही इज गेटिंग रिटायर्ड, इसलिए मैंने इधर लिखा है क्लियरली। कौन रिटायर हो रहा है देखना पड़ेगा, ये बंदा नहीं रहेगा बीच वाला, तो 1/6 करना पड़ेगा। कितना होगा? 7/30। 7/30 होने से कितना रेशियो है? 3:7। सर गेनिंग रेशियो 3:7। सर रेशियोज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, क्लियर है ना? सर गेनिंग रेशियो आ गया कि नहीं? हाँ वेरी गुड। अभी नेक्स्ट जब It was agreed that adjustments were to be made in the balance sheet as on 31st March 2022. इन्वेस्टमेंट का तो फॉलोइंग, वेरी गुड। हाँ The machinery was to be revalued at सर रीवैल्यू, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डालना पड़ेगा। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या होगा? लॉसेस, क्रेडिट क्या होगा? इनकम्स। हाँ 45,000 सर इनकम है, लॉस है। the stock was to be reduced by नहीं मशीनरी टू बी रिवैल्यूएटेड 45,000। सर कॉस्ट कितना है? 50,000। 45 तो मतलब 5,000 कम होगा, ठीक है? ठीक है 8,000 आपको सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं, 8,000 रिवैल्यूएशन पे, ठीक है? 8,000 को भी ट्रांसफर कर देगा रिवैल्यूएशन अलग से, वो एक अप्रोच है। दूसरा है 42 का माइनस 45 3,000, ठीक है? एक अप्रोच है। प्रोविजन को भी रिवैल्यूएशन में लेके जा सकते हैं, सेम अमाउंट पे 8,000, वो क्रेडिट होगा ना, क्योंकि वो लायबिलिटी मैंने लायबिलिटी जैसे लिया है, समझ गए? क्योंकि माइनस तो नथिंग बट लायबिलिटी ना, समझ गए? हाँ तो इसमें 3,000 है प्रॉफिट। स्टॉक कितना है? stock was to be reduced by 2%. सर 2% कम करना है, 50,000 इंटू 2% कितना है? ₹1,000, ₹1,000 ना। बैलेंस शीट में कितना जाएगा वैल्यू? 49,000। 49,000 कैसे आएगा डायरेक्टली? 50,000 इंटू 98% कर सकते हैं, समझ गए ना? सर 50,000 माइनस 1,000 कर सकते हैं, नहीं तो मैं क्या करता हूँ 50,000 इंटू 98% करता हूँ। सर 98% कैसे है? 2% कम हो रहा है ना, तो 100 माइनस 2 कितना है? 98। डायरेक्टली 98% को कैलकुलेटर में दबा सकते, ठीक है? फर्नीचर कितना है? सर रेड्यूस टू 600, टोटल मैंने एक्चुअली बैलेंस शीट में कितना है? 1,000 रुपीज। सर 1,000 रुपीज टू 600 तो 400 लॉस है, समझ गया? 400 देखो डेबिट साइड रियलाइजेशन में आएगा, ठीक है? हाँ प्रोविजन फॉर गवर्नमेंट डेट्स, Sir, furniture fixed फर्नीचर 600 ना, सॉरी समझा दीजिए furniture. फर्नीचर वैल्यू कितना है? बस रिड्यूस टू 2 लिखा है, मतलब उसका रियलाइजेबल वैल्यू 600 ही है, मतलब उसको बेचने से आपको 600 ही मिलेगा, तो 1,000 है बैलेंस शीट में, 400 हमको कम करना पड़ेगा, समझ गए ना? तो 400 लॉस होगा, ठीक है? हाँ प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट डेट्स कितना है? 4,000। सर बैलेंस शीट में कितना है? 3,000। 1,000 प्रोविजन बढ़ जाएगा तो 1,000 लॉस है, ठीक है? हाँ The provision of rupees 300 was to be made for outstanding issues. सर 300 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है? लॉस है, ठीक है? हाँ अभी रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस कितना है तो देखो, क्रेडिट कितना है, मतलब इनकम कितना है, लॉस कितना है, टोटल देखो। सर इनकम एक ही है, कौन सा? मिशनरी का। सर 3,000 प्रॉफिट है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट से, ठीक है? 3,000। सर लॉसेस कौन सा है? स्टॉक 1,000, फर्नीचर 400, बैड डेट्स 1,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 300, ये सब ना, नथिंग बट 3,000 माइनस 2,700। एंट्री देखो उधर, आंसर में देखो, सेकंड एंट्री 3,000 की इनकम ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो मतलब इनकम से डेबिट कितना हुआ? 2,700, प्रॉफिट कितना है? 300।
यस और नो? 300 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो में शेयर करना पड़ेगा। 3:2:1 कितना है? 150 150 क्लियर टिल नाउ सर रिजर्व्स है अकाउंट बैलेंस शीट में उसको भी शेयर करना पड़ेगा सर इन व्हाट रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर 30,000 है रिजर्व 30,000 है सर नो सर 30,000 पार्टनर्स को शेयर कर लीजिए ओल्ड पार्टनर्स को इन द रेशियो ऑफ 3:1 कितना होगा 15 10 5 क्लियर एंट्री से तक ठीक है एंट्री से तक ठीक है ना रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि लायबिलिटी साइड है सर उसको रिवर्स उसको जीरो करना है तो डेबिट करना है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट फर्स्ट एंट्री सर सेकंड एंट्री क्या है गेन रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा सर मशीनरी टू रिवैल्यूएशन हां समझ गया सर थर्ड एंट्री रिवैल्यूएशन टू स्टॉक टू फर्नीचर टू बैड डेट्स टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है नथिंग बट लॉस क्लियर सर फोर्थ एंट्री रिवैल्यूएशन टू कैपिटल अकाउंट ये क्या है सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था 300 शेयर कर रहा है पार्टनर्स को ठीक है वेरी गुड अभी नेक्स्ट को पढ़ो The partnership agreement provided that on the retirement of the partner, goodwill was to be valued at ₹24,000. सर व्हाट इज दैट गुडविल अमाउंट 24,000 सर एसेट साइड में गुडविल है क्या नहीं है अगर होने से क्या करना है एसेट साइड में जो है उसको ओल्ड पार्टनर्स को यूज करना है समझ गया ओल्ड पार्टनर्स को अगर ऐसे लीजिए एसेट साइड में 10,000 है अभी बोल रहे 24,000 14,000 को बांटना है समझ गए ऑलरेडी अगर बैलेंस शीट में तो ऑलरेडी बांट दिए इसका मतलब समझ गए ना हाँ अभी 24,000 इसका शेयर कितना है जो जा रहा है उसका शेयर कितना है 2/6 वेरी गुड 2/6 से कितना होगा 24 डिवाइड बाय 6 तो 600 डिवाइड करो 4,000 है 8,000 होगा सर 8,000 गुडविल सर अगर एडमिशन के समय गुडविल लेके आ रहा है बंदा जाने के समय भी देके जाना है सर तो शेयर हम देना पड़ेगा सर एडमिशन के समय पे हम बोल रहे हैं कि तुम गुडविल भी लेके आओ तो हम रिटायर होने के समय हम गुडविल भी देके भेजना पड़ेगा उसको समझ गए सर 8,000 गुडविल अभी उसको भेज के हम उसको दे के भेजना पड़ेगा समझ गए सर उसको तो whose capital amount will be created for 8,000 retired partner who is retiring here कौन सर कौन कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए 8,000 का ये सर देखो एंट्री 8,000 कौन कैपिटल सर डेबिट किसको होगा एग्जिस्टिंग गेनिंग पार्टनर सर से नॉट एग्जिस्टिंग गेनिंग पार्टनर सर वो 8,000 किस रेशियो में शेयर करेगा गेनिंग रेशियो सर गेनिंग रेशियो सर 3:7 कितना होगा 8,000 डिवाइडेड बाय 10 मारो into 3 800 into 3 2,400 3,000 5,600 क्लियर सर क्लियर ना गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया ना हाँ नेक्स्ट And Bloom's share of the same was to be adjusted in the accounts of Compass and Circle. वो तो हमने अभी किया ठीक है एग्जैक्टली वो अमाउंट के लिए अकाउंट एडजस्ट करो बोला हम एडजस्ट कर दिया ठीक है समझ गए ना हाँ The profit up to the date of retirement was सर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट सर कितना महीने का प्रॉफिट है ये 3 महीना वेरी गुड सर 18,000 फॉर 3 मंथ्स कैसा समझ गए बिकॉज बुक्स क्लोज हो 31 दिसंबर रिटायर हो रहा है 31 मार्च ऐसा ना सर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बोला है तो 31 मार्च तक ये प्रॉफिट है 18,000 सर जाने के समय जो उधर तक जो काम किया था ना उसको 18,000 में भी शेयर मिलना चाहिए ऐसा तो 18,000 में शेयर कितना है बोलो 18,000 में शेयर कितना है हाँ 18,000 पूरा शेयर करो क्योंकि 18,000 पूरा अभी फिर 3 पार्टनर्स को मिलना चाहिए ना ऐसा हाँ इसको कितना मिलेगा तीनों को भरो 9,000 3,000 अंडरस्टूड सर डेबिट क्या कर रहा है
सर क्रेडिट उसको दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। कौन है कंपास कौन क्या कंपास कौन सब्जेक्ट को क्रेडिट किया, डेबिट किसको कर रहा है? पीएनएल अकाउंट नॉर्मली करना है, लेकिन इधर पीएनएल सस्पेंस कर रहा है, क्यों सर? रीजन क्या है? नॉट एरर सर। पीएनएल अकाउंट इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर में क्रिएट करना है, ऐसा ना सर। पीएनएल अकाउंट बीच में नहीं करना है, ये रूल है, ऐसा ना सर। बीच में लेकिन ये कर रहा है, प्रॉफिट शेयर कर रहा है, इसलिए टेम्पररी अकाउंट ये क्या है? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट बाद में पीएनएल अकाउंट को ट्रांसफर कर देगा, समझ गए? समझ गए? तो सोच लीजिए ये रेट में सपोज 50,000 प्रॉफिट आया था, ठीक है। ये 18,000 माइनस करके बाकी ही शेयर करेगा, समझ गए? दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर सर? सर अभी टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर्स को पैसा दे देना है, ठीक है। बाद में वो पीएनएल सस्पेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करना है। लॉजिक समझ रहे हैं सर? सर वही यू शुड नॉट डेबिट पीएनएल डायरेक्टली बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स ऑन 31 मार्च, नॉट एट द ईयर एंड। सर लॉजिक समझ गए? हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएनएल सस्पेंस कब आएगा? रिटायरमेंट के समय, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्रॉफिट शेयरिंग इज डेबिटेड टू द पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। सर टिल द डेट ऑफ डेथ, similarly till the date of death profit shared to the partners is debited to P&L suspense। लॉजिक समझ रहे हैं ना? रिटायरमेंट में भी सेम केस, डेथ में भी सेम केस। यस सर, अगर वो ईयर एंड में रिटायर हो रहा है प्रॉब्लम नहीं है, पीएनएल किसी का कर देगा। क्लियर? क्लियर सर? नेक्स्ट Who was to be paid off in full? सर कौन was to be paid off in full? तुरंत कौन कैपिटल अकाउंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा? सर ओपनिंग बैलेंस, यस सर ना सर। कौन कैपिटल अकाउंट में जाओ, क्या बोला है? कौन वाज टू बी पेड ऑफ इन फुल? लोन अकाउंट ये सब नहीं है, यस सर। लोन अकाउंट ये सब नहीं है। हाँ, क्या बोला बाद में? Who must be paid off in full? Compass and Circle were to be bring such an amount in cash so as to make their capital in proportion to the new profit sharing ratio. सर ये पॉइंट क्या है? कशिप ये पॉइंट का मीनिंग क्या है? Compass and Cone were to bring such an amount in cash so as to make their capital in proportion to new profit sharing ratio। इसके ये क्या है? ये कौन सा एडजस्टमेंट है? हाँ, कैपिटल एडजस्टमेंट। हमने बोला है ना कैपिटल एडजस्टमेंट। सर क्लोजिंग कैपिटल किस रेशियो में रहना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैश लेके आना है, कैश लेके जाना पड़ेगा। सर ज्यादा कैपिटल जिसके पास है वो कैश लेके जाएगा। सर कम कैपिटल किसके पास है? वो लेके आएगा। टू मेक द कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर दिस इज कैपिटल एडजस्टमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, subject to the condition that the cash balance of rupees 20,000 plus to be maintained as working. सर क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना रहना है? 20,000। सर न्यू फर्म में स्टार्ट कितना कैश बैलेंस होना है? 20,000। समझ रहे हैं सर? 20,000 है। सर ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है मुझे बोलिए? ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है सर? सर ये कैश एंड बैंक अकाउंट मैंने ड्राफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन बैलेंस शीट में क्लियरली दिया है कैश एंड बैंक, ठीक है। तो ये बैंक अकाउंट होगा। क्लियर सर? सर बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है? सर 40,000 ओपनिंग बैलेंस है। यस, 40,000 ओपनिंग बैलेंस है सर। समझ गए? 40,000 का बैलेंस है। सर प्रॉफिट कितना है सर? 3 मंथ्स के लिए प्रॉफिट कितना है? 18,000। सर प्रॉफिट इज नथिंग बट यू माइट हैव रियलाइज्ड इट इन कैश, कैसे होगा? सर कैश बैलेंस 18,000 के बढ़ जाएगा सर ना? यस सर ना? सर 40,000 है, मैंने प्रॉफिट अर्न किया है, तो प्रॉफिट किस में दिखेगा? कैश में ही ना, डायरेक्टली। यस सर? यस सर ना? सर 18,000 बढ़ गया। सर क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 20,000। सर सब में दे दिया ये। मैं
सबने दे दिया सर, क्लोजिंग बैलेंस 20,000 रहना है न्यू फर्म में, दे दिया सर। कैपिटल अभी कौन को कितना पेमेंट करना है वो देखना होगा, क्योंकि कौन टू बी पेड ऑफ इन फुल, ऐसा तो कौन को पेमेंट कर देना है पूरा अमाउंट सर, वो पेमेंट कितना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। वो देखने से ही पार्टनर्स कितना लेके आएगा देख पाएगा, ठीक है। तो कौन अकाउंट में जाइए, कौन अकाउंट में जाइए, लुक एट ओनली कौन अकाउंट एंड टिक द अमाउंट्स, ओके। सर ओपनिंग बैलेंस कितना है 60,000, वेरी गुड सर। रिजर्व कितना शेयर किया है 10,000, वेरी गुड सर। रियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है 100 रुपीज, वेरी गुड, टिक करो उसको, ठीक है सर। 18,000 3 मंथ्स का प्रॉफिट है, उसको शेयर कितना है 6,000, वेरी गुड, ठीक है, इधर तक ठीक है सर। गुडविल कितना एडजस्ट किया सर, कौन को गुडविल कितना मिला है, कौन को टोटल गुडविल कितना मिला है 8,000, वेरी गुड सर। टोटल 8,000 है, 2,400 प्लस 5,600 मिला के बाइफरकेट किया था, क्यों, ये कितना बेयर करेगा, कॉम्पैस कितना बेयर करेगा, सर्किल कितना बेयर करेगा, वो वाला दिया है ऐसा ना सर। 8,000 क्रेडिट हुआ ऐसा ना सर। अभी बैलेंस देखो 60 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 6 प्लस 2.4 प्लस ये सब टोटल मिला लो कितना 84,100 सर। कितना पेमेंट करना है तुमको सर 84,100 पेमेंट करना है, यस और नो 84.1 के सर। अभी बैलेंस कितना है, बैलेंस दिस कैश इन बैंक अकाउंट मिला है 46 सर। 46,100 ये क्या है, क्या है 46,100 कैश कौन लेके आएगा, एग्जिस्टिंग पेरिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर को कॉम्पैस एंड सर्किल लेके आएगा सर। कितना रेशियो में लेके आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन 46,100 ये लेके आएगा तो तब मैं 84,100 इसको दे पाऊंगा, 20,000 बिजनेस में रख पाऊंगा, समझ गए सर। इफ ही गेट्स बिकॉज आई डोंट हैव सफिशिएंट कैश ना, टोटल कैश कितना 58,000 सर। 58,000 से हाउ कैन आई पे 84,100, दैट इज नॉट पॉसिबल, यस और नो। सो दे हैव टू ब्रिंग सम कैश सर। कितना लेके आना है सर 20,000 क्लोजिंग बैलेंस रखना है, 84,100 टोटल पेमेंट करना है। बैलेंसिंग फिगर, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, वेरी गुड, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ओके, दिस इज बैलेंसिंग फिगर सर। व्हाट इज दिस बैलेंसिंग फिगर, कैश टू बी ब्रॉट इन बाय कॉम्पैस एंड सर्किल सर। कौन कितना लेके आएगा वो मुझे पता है, टोटल है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। इधर तक समझ गए, इधर तक समझ गए। अभी कैपिटल अकाउंट्स में आओ दोबारा, कॉम्पैस एंड सर्किल, ठीक है, कॉम्पैस एंड सर्किल सर। ओपनिंग बैलेंस कितना है 40,000 20,000 सर। रिजर्व शेयर किया 15,500, यस और नो। रियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है सर 150 रुपीस और 50 रुपीस, यस और नो। हमने एंट्रीज ऑलरेडी पास किया था इसका, यस और नो, हाँ सर। प्रॉफिट अर्न फॉर 3 मंथ्स, शेयर कितना है 9,000 3,000, these are all the credits, yes or no सर। डेबिट्स में हो सर 2,400 5,600 ये क्या है गुडविल शेयर बॉन्ड बाय द गेनिंग पार्टनर्स, ये बॉन्ड बाय द गेनिंग पार्टनर्स सर। अभी तक बैलेंस का कितना है 40 plus 50, 40,000, 55,000 plus 150 plus 9,000 कितना है सर -2,400, इधर तक करो 61,750 सर। दिस इज नॉट क्लोजिंग कैपिटल, दिस इज कैपिटल बिफोर कैश इंट्रोड्यूस्ड, this is the capital before additional capital introduced, yes or no. Cash brought by the partners is nothing but additional capital, do you agree with me, yes
Now calculate circles also. 22,450. Yes or no? Now this amount is 46,100. Yes or no? Sir, this is existing capital before new capital introduction. This is also existing capital. Sir, this is new capital introduced. This will be this will be total new capital. Yes or no? 130. Sir, this is the capital of new firm. Understood, sir? This 130 300 will be the capital of new firm. Following me? Any doubts till now? Repeat doubt like this. This is the existing capital before capital introduction. Additional capital introduction. This is also existing capital before additional capital introduction. Sir, I know why I am calculating this both, because I know the lump sum figure of both the partners, what they have to bring in. Yes or no? So I am adding these two also and adding these two. Total 3 figures. This is nothing but total capital in the new firm. Yes or no? Sir, this has to be in what ratio? Profit sharing ratio. Yes or no? So profit sharing ratio of nothing but new ratio. Yes or no? New profit sharing ratio. So new profit sharing ratio में A और B बांटो. 78,180. इसका 52,120. वेरी गुड. सर अभी क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया था. कम टू कैपिटल अकाउंट 2 बैलेंस कैरी आउट कितना है? 78,180, 52,120. यस सर, अभी जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा कैपिटल अकाउंट में, दैट इज नथिंग बट कैपिटल टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर. सर अभी बैलेंसिंग फिगर करो. कंपास में कितना आएगा? सर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 2 बैलेंस कैरीड आउट. दिस इज नथिंग बट क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस. Following me? 78,180, 52,120. Following me? Repeat. Total in the balance calculate. 16,430. This is nothing but additional capital introduced by Compass. Now, सर्किल को देखो. Sir, did you understand? Following me? Any doubt here? This is the total cash to be brought in by the new partners. हाँ. कितना है? 29,670. इतना ही आना है. सर ये दोनों को मिला 16,430 plus 29,670. सर 46,100. समझ रहे हो? वो लोग दो लोग लेके आएगा तो उस पैसा से मैं इसको पे करूंगा और बैलेंस 20,000 रखूंगा और इनडायरेक्टली ये क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में रहेगा. समझ गए सर? प्रोसेस समझ गए? पहले कौन कैपिटल को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस देखना पड़ेगा, तब उसको जाके कैश अकाउंट में भरना पड़ेगा, तभी मुझे कितना कैश लेके आएगा समझ आएगा. यस और नो? तो टोटल कैश बॉट इन बाय 2 पार्टनर्स. दिस इज अमाउंट. सर टोटल कैपिटल ऑफ 2 पार्टनर्स बिफोर एडिशनल कैपिटल कितना है? फाइंड आउट करो. उसको ये ऐड करो. टोटल न्यू कैपिटल का फॉर्म आ जाएगा. यस और नो? फॉलोइंग लॉजिक फॉलो कर रहे हैं ना? ठीक है? ठीक है? हाँ. दिस इज सम नंबर 11. ओके? कम टू सम नंबर 14. फर्स्ट. हाँ हाँ हाँ. सम नंबर 14 में हम कैसे रीड आउट? मोहित रीड आउट. 14 समझे? सर रीड दिस. सर इक्वल पार्टनर्स इन द सेंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1:1 सर. हाँ. The balance sheet as on 31st December 2021. सर 31 दिसंबर 2021 कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर?
कैलेंडर ईयर, वेरी गुड। Partners capital. पार्टनर्स कैपिटल, सर कैपिटल अकाउंट्स दिया, करंट अकाउंट्स दिया है सर ये कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो बिकॉज करंट अकाउंट दे दिया तो मतलब क्या है, कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगा, जो भी एडजस्टमेंट्स करना है किस अकाउंट से करेगा? करंट अकाउंट, वेरी गुड। हाँ Partners capital. Just 1 lakh, Y 1 lakh. ठीक है, कैपिटल से करंट अकाउंट से बाद में सैलरी क्रेडिटर्स है, ओके। हाँ, एसेट्स में लैंड एंड फ्री होल्ड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर्स, बैंक बैलेंस, ओके। देयर इज नो गुडविल, देयर इज नो रिजर्व, सर रिजर्व नहीं है, गुडविल नहीं, हेडेक नहीं है शेयर करने का, वेरी गुड। देन On 1st May 2022, just retired and it was. सर कौन रिटायर हो रहा है सर? सर कौन रिटायर हो रहा है? सर एक्स वाई जेड रेशियो कितना है? 1:1:1। कौन रिटायर हो रहा है? एक्स रिटायर हो रहा है सर। सर वाई एंड जेड विल बी द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, यस। हाँ And it was agreed that he will be paid all his dues in full on that day. सर ऑन द डेट ही शुड बी पेड फुल, तो डायरेक्टली कौन अकाउंट जैसे उस पर अकाउंट कैपिटल अकाउंट देखना है कितना बैलेंस जाएगा, उसको पूरा कैश पेमेंट कर देना है, ठीक है सर। हाँ For this purpose, goodwill was to be calculated on the basis of 3 years purchase of past 3 years profits, which amounted to 1 lakh, 1,40,000. 1,40,000, 1,20,000 सर 3 इयर्स प्रॉफिट दिए, एवरेज कितना है बोलो तो? 360 है, डिवाइडेड बाय 3, 1,20,000 into 3, फिर 360। सर गुडविल अमाउंट कितना है? गुडविल अमाउंट कितना है? 3,60,000 इज द गुडविल। सर 3 इयर्स परचेज है ना सर? व्हाट डू यू मीन बाय 3 इयर्स परचेज? सॉरी सर 3 years purchase, what do you mean by number of years purchase? Goodwill, due to this goodwill this firm will have earned supernormal profit for next 3 years। 2 marks को पूछ सकते हैं, ब्लैंक भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ सर गुडविल कितना है? 3,60,000। सर एक्स रिटायर हो जाएगा ऐसा ना सर, कितना मिल जाएगा इसको? 1/3 कितना है सर? 120। सर 120 कौन पे करेगा? वाई एंड जेड। सर गेनिंग रेशियो कितना है? 1:1 इनडायरेक्टली। सर ये 1:1 है, इसमें न्यू रेशियो दिया है क्या? 1/3 लिखा है, 1/3 नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है इधर, ठीक है। नथिंग स्पेसिफाइड, सेम रेशियो, ठीक है। तो कितना मिलेगा? 60-60, सॉरी 60-60 बेयर करेगा, समझ गए? 1,20,000 देगा इधर तक, ठीक है। हाँ अभी दोबारा पढ़ो। In order to meet this obligation, the bank loan arranged. सर ये लोग पे करने के लिए क्या कर रहा है? क्या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को नहीं बोल रहे पैसा लेके आने के लिए, क्या कर रहा है? बैंक लोन लेके आया था सर, बाहर जाके बैंक लोन लेके, कितना लेके आया? 2 लाख। सर कैसे लिया? प्लेजिंग का फिक्स रेशियो। सर प्लेज के लिए कुछ एंट्री नहीं रहेगा, प्लेजिंग के लिए कुछ एंट्री नहीं रहेगा, दिस इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। प्लेजिंग इन द सेंस व्हाट डू यू मीन बाय प्लेज? जस्ट अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लाइज विद द सिक्योरिटी, जस्ट यू आर गिविंग इट एज सिक्योरिटी, ओके। दिस इज जस्ट प्लेजिंग, ओके। देयर विल नॉट बी, आई मीन देयर विल नॉट बी एनी ट्रांजैक्शन फॉर प्लेजिंग। हां देन Further to compensate the large manager too, it was agreed between Y and Z that two should be admitted as a partner. सर व्हाट इज दिस क्यू? You are manager. सर एडमिशन है ये, ऊपर रिटायरमेंट है, नीचे एडमिशन है, दिस इज नथिंग बट रिटायरमेंट कम एडमिशन। एक बंदा जा रहा है, एक बंदा आ रहा है, कौन आ रहा है सर? क्यू आ रहा है, एक्स के जगह में अभी क्यू आ रहा है, ठीक है, क्यू, ठीक है, क्यू आ रहा है। हाँ Who should pay it over and above the capital of 1 lakh, a share of the goodwill in cash to serve as working सर capital.
1 लाख कैपिटल लेके आएगा, एडिशन टू दैट ही हैज टू बी गुडविल आल्सो। सर गुडविल अमाउंट कितना है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, Why is it agreed to one third of the individual share of profits to Q? सर 1/3 इज अ न्यू रेशियो ऑफ Q। सर Q को कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा। सर बाकी 2/3 कौन करेगा? व्हाट रेशियो? एग्जिस्टिंग रेशियो। सर 2/3 को हाफ ऑफ करेगा, नथिंग बट 1/3 1/3। यस और नो? सो न्यू रेशियो, व्हाट इज द न्यू रेशियो? 1:1 between YZ and Q। Following me sir? Sir now goodwill भी लेके आएगा बोल रहा है। Sir read that line, this is very very important. Sir who should bring it over and above a capital of 1 lakh? Sir above this 1 lakh capital he has to bring his share of goodwill in cash. He has written specifically in cash. Sir goodwill amount कितना है? 3,60,000। Sir इसका शेयर कितना है? 1/3। वेरी गुड। सर 1/3 मतलब 1,20,000। सर ये 1,20,000 कौन लेके आएगा? क्यों लेके आएगा? कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? YZ। लेकिन इधर कौन लेके जाएगा? X। कौन बेयर करेगा? सर ये लोग को 60-60 इधर मिल रहा है, इधर बेयर कर रहा है, नथिंग बट लॉस है इन लोग का, लेकिन इधर मिल रहा है उन लोग को 60-60। ऐसा ना फॉलो मी, YZ will not get impacted। 60,000 दे रहा है, 60,000 ले रहा है, लेकिन ये 1,20,000 लेके जा रहा है, ये 1,20,000 लेके आ रहा है। क्लियर सर? कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट क्लियर है ना? हाँ बस वेरी सिंपल इन दिस। Prepare partners capital account, partners current account and opening balance sheet. ओपनिंग बैलेंस शीट। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। वेरी वेरी इजी सर, देख लेना एक बार। इसमें रिवैल्यूएशन भी नहीं है सर, देखा है ना? इसमें रिवैल्यूएशन भी नहीं है सर, रिवैल्यूएशन नहीं है, ओनली गुडविल है। जेएलपी भी नहीं है, कैपिटल एडजस्टमेंट भी नहीं है। हाँ अभी आओ कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग कैपिटल कितना है सर? मोहित ओपनिंग कैपिटल कितना है? 1 लाख, 2 लाख क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखा है सर? हाँ अभी करंट अकाउंट में जाओ सर। करंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है सर? 50,000, 75,000, 45,000। बैलेंस शीट से सीधा लेके आया था, वो अकाउंट खुला है, ठीक है? पार्टनर कैपिटल करंट, अदर थिंग व्हाट द लास्ट ओपनिंग बैलेंस शीट। यस हाँ अभी देख लेना, कैपिटल अकाउंट में कुछ एडजस्ट नहीं करना है, ओनली कैपिटल इंट्रोड्यूस रखना है, ठीक है? हाँ जेड कितना लेके आया सर पैसा? 1 लाख कैपिटल है, और क्या लेके आ रहा है सर? गुडविल इन कैश, बिकॉज दे हैव मेंशन्ड क्लियरली हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सर कैश में लेके आना है, तो टोटल कितना अमाउंट लेके आ रहा है सर? हाँ 1,20,000 कौन सा अमाउंट है? गुडविल कैपिटल कितना है? 1 लाख। टोटल कितना है? 2,20,000। सर टोटल कितना लेके आ रहा है? 2,20,000। सर लेकिन कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट करना है? ओनली 1 लाख। ये सर ओनली 1 लाख। करंट अकाउंट में गुडविल के लिए 1,20,000 करना पड़ेगा। इसमें जेड क्यू अकाउंट नहीं डाला, मैं इधर ड्राफ्ट कर लेता हूँ। आपको क्वेश्चन में, आपको आंसर में क्यू अकाउंट नहीं दिया है, मैं इधर डाल रहा हूँ। 1,20,000 करंट अकाउंट, 1 लाख इन कैपिटल अकाउंट। क्लियर? आपको एग्जाम में क्यू अकाउंट का भी देना पड़ेगा, करंट अकाउंट, ठीक है? ओके सर कैपिटल अकाउंट में अभी देखो कितना अमाउंट लिया है। कैपिटल अकाउंट में क्यू अकाउंट देखो 1 लाख लेके आया था, बिकॉज ओनली कैपिटल अकाउंट्स, only capital introduced, additional capital introduced has to be reflected in the capital account. Rest of all the adjustment has to be reflected in current account. So 1 लाख आ गया है ना, ठीक है? इधर तक टिक करो, जो मैं बोल रहा हूँ वही टिक करो, तभी बैलेंस होगा अकाउंट। हाँ ठीक है? अभी बैंक बैलेंस कितना है सर? ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है सर? सर ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है? 1,50,000।
सर क्वेश्चन में वो क्या बोला है, लोन लेके आया था। सर लोन कितना है? 2 लाख। सर 1,50,000 हाथ में है, 2 लाख लोन लेके आया था। टोटल हाथ में कितना पैसा है? 3,50,000 हाथ में पैसा है। समझ गए? सर बाद में नया पार्टनर क्यों क्या है, कितना पैसा लेके आया? 2,20,000। टोटल कैश हैंड में कितना है? 5 लाख 70,000। यस यस। हाँ, अभी एक्स को पेमेंट कितना करना है देखना पड़ेगा, बिकॉज एक्स इज रिटायरिंग। ये सुनो, एक्स कितना पैसा लेके जाएगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स कैपिटल अकाउंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा। सर एक्स कैपिटल अकाउंट में जाओ तो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी है, ठीक है। अभी करंट अकाउंट में आओ, करंट अकाउंट में आओ तो सर 60,000 क्रेडिट। व्हाट इज दिस? गुडविल। सर कौन लेके आया? हाँ सर एक्स रिसीव कर रहा है, इसको कौन बेयर कर रहा है? वाई एंड जेड। सो इसलिए वाई जेड 60, ठीक है। सो एक्स को 1,20,000 हमने क्रेडिट किया कैपिटल में, नथिंग बट उसको पैसा दिया, समझ गए? हाँ, अभी ये पैसे कहाँ से आए? सर वाई एंड जेड से। सर वाई एंड जेड का कैपिटल अकाउंट में डेबिट देखो, सर करंट अकाउंट में डेबिट देखो 60, ठीक है। इधर तक ठीक है ना? हाँ, और एक्स अकाउंट में और ट्रांजैक्शंस नहीं है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस गुडविल 1,20,000। सर ओपनिंग करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ एक्स कितना है? 50। गुडविल कितना है? 1,20,000। टोटल कितना है? 1,70,000। दिस इज द अमाउंट दैट हैज टू बी पेड टू एक्स। यस और नो? इधर 1,70,000 निकल जाएगा। फॉलोइंग मी, बैंक बैलेंस से कितना निकल जाएगा? 1,70,000 प्लस कैपिटल ऑल्सो ना। सो व्हाट दे आर डूइंग हियर ना, 1,70,000 को लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। कैपिटल अकाउंट में आ जाओ एक बार, जो 1,70,000 देना था उसको उधर डेबिट किया है, करंट अकाउंट को डेबिट किया है, इधर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, ठीक है। टोटल अभी कितना पेमेंट करना है? 1 लाख प्लस 1,70,000, 2,70,000। सर इधर टोटल 1,70,000 प्लस 1 लाख कैपिटल अमाउंट। दिस इज नथिंग बट करंट अकाउंट पोर्शन, दिस इज नथिंग बट कैपिटल अकाउंट पोर्शन। टोटल मिलाकर 2,70,000 पेमेंट जाएगा, ठीक है सर। तो बैंक बैलेंस क्लोजिंग कितना है? कितना? 3 lakhs। बैंक बैलेंस कितना? बैलेंसिंग फिगर इज 3 lakhs। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ओके। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ओके सर। 3 lakhs बैलेंस शीट में देखो, 3 lakhs बैंक बैलेंस, ठीक है। बैलेंस शीट एसेट से बैंक बैलेंस 3 lakhs, क्लोजिंग बैलेंस। हाँ क्लियर? अभी बाकी सब एडजस्टमेंट्स हो गया ना? हाँ, सीधा अभी अकाउंट्स में जाओ। सर वाई एंड जेड, इधर क्यू अकाउंट 1,20,000 को लेके आया था, ठीक है। क्यू करंट अकाउंट क्रेडिट, ओके। कैश अकाउंट डेबिट टू क्यू करंट अकाउंट क्रेडिट, दिस इज द एंट्री। इसको अभी शेयर कौन कर रहा है? 60 कौन कर रहा है? वाई एंड जेड। सर वाई एंड जेड कैपिटल अकाउंट में देखो, क्रेडिट 60, क्लियर सर? क्लियर है ना? ऑलरेडी गुडविल ये लोग शेयर किया था एक्स के लिए 60, ये दोनों का नलीफाई हो जाएगा, तो ओपनिंग करंट अकाउंट बैलेंस विल बी द क्लोजिंग करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, अभी आ जाओ। कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग कैपिटल कितना है? एक्स को ऑलरेडी पेमेंट कर दिया हमने, तो बाकी कौन रिमेन किया है? वाई जेड क्यू। वाई जेड क्यू का कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना है? 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख। बैलेंस शीट में जाओ, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ठीक है। अभी करंट अकाउंट में आप क्लोजिंग बैलेंस कितना है? सेम वाई जेड का, ठीक है। सर क्यू का क्या है? क्यू का कुछ नहीं,
इधर देखो 1,20,000 डेबिट 1,20,000 क्रेडिट, नील बैलेंस, समझ गए? ठीक है, अभी एसेट्स एज इट इज डाल दो इसमें। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 50,000, स्टॉक कितना है 1 लाख, डेट्स कितना है 1 लाख, बैंक बैलेंस हमने रिवाइज कैलकुलेट किया, ठीक है 3 लाख। अभी लायबिलिटी से कैपिटल हो गया, बैंक लोन है एज इट इज बैलेंस शीट से आएगा नहीं 2 लाख, वो लोग बैंक लोन लिया है ना, तो बैंक लोन लायबिलिटी इधर जो 2 लाख लिया था एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लोन लायबिलिटी होगा 2 लाख इसलिए लायबिलिटी से, ठीक है। क्रेडिटर्स कितना है सेम 1 लाख, बैलेंस शीट कैरी हो जाएगा। सर इसमें रिवैल्यूएशन नहीं है, गुडविल है, ठीक है, लेकिन रिटायरमेंट का एडमिशन है, समझ गए? कैपिटल अकाउंट किसको क्रेडिट करना है किसको डेबिट करना है वो मेन बात है, समझ गए? समझ गए सर? रिटायरमेंट का एडमिशन, सर मैंने एडमिशन सम्स बताया, रिटायरमेंट सम्स बताया, रिटायर अकाउंट एडमिशन भी बताया, ठीक है। टेक दिस सम फॉर होमवर्क। मैंने 11-14 बताया, यस 9, 10, 11 मैंने बताया, 12, 13 होमवर्क ले लीजिए। सेम मेरा जो है CW बॉक्स, HW बॉक्स 9, 10, 12, 13 होमवर्क ले लीजिए। 11, 14 मैंने बताया था, 11, 14 क्लास वर्क, 9, 10, 12, 13 होमवर्क, सेम ऐसे ऐसे लिखना है सर, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था लास्ट क्लास में। क्लास वर्क होमवर्क ऐसा लिख लीजिए क्लियरली, समझ में आएगा कौन एक्सप्लेन किया। इधर क्या था 11 एंड 14 मैंने एक्सप्लेन किया, 9, 10, 12, 13 होमवर्क ले लीजिए, ठीक है सर। सर 14 में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है सर। मेन पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गुडविल शेयरिंग, लिख दो फर्स्ट पॉइंट गुडविल शेयरिंग। सब नंबर 14 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, गुडविल शेयरिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेकंड पॉइंट इज कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है सर। गुडविल शेयरिंग इधर चॉइस है सर, 1,20,000 एक बंदा लेके जा रहा है, 1,20,000 एक बंदा लेके आ रहा है, ठीक है ना। इसमें सब में पूरा इजी है क्योंकि 1:1 है, सभी में 1:1 है, लेकिन सब में ये बहुत टिपिकल होगा। अगर स्टार्टिंग 5:3 है, बाद में 1:2 है, ऐसा आएगा तो बहुत दिक्कत होगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। गुडविल कैसे सैक्रिफाइस, एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ठीक है, उसी रेशियो में गुडविल शेयर करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट्स, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट सर कैसे है, मेन गुडविल के लिए, ठीक है। क्लोजिंग रिटायरिंग पार्टनर को कैसे पेमेंट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। लोन लेके आया इसमें वेरी इजी है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। पहले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 में आ जाओ, 11 में बोलो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सॉरी कैपिटल एडजस्टमेंट, वेरी गुड। कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स ना, कैसे होगा, ओल्ड क्लोजिंग कैपिटल ये सब कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मेन फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट्स हाइफन क्या लिखना है, कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट्स हाइफन कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट क्या है, formula of P&L suspense, very good sir. P&L suspense, this is very important point. P&L suspense very important point. Third कुछ और है क्या, थर्ड इसमें, और बाकी सब ठीक ही है ना, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। हाँ 11-14 हो गया, 15 भी समझा देता हूँ, ठीक है। 15 भी मैं समझा देता हूँ, होमवर्क ले लीजिए, लेकिन मैं समझा देता हूँ संपूर्ण। 15
15 में जाओ. Second point is P&L suspense account. P&L suspense account. Read it. Please somebody read it. X, Y, Z are partners sharing profit and losses in the proportion to 3:2:2. सर एक्स वाई जेड रेशियो क्या है? सर रेशियो क्या है? 3:2:2 वर्ल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेक्स्ट. The balance sheet of the firm as of 1st January 2022. सर 1 जनवरी दी है, कैलेंडर या फाइनेंस ईयर है? कैलेंडर ईयर सर. हाँ Liabilities, capital account, X, Y, Z, हाँ. 1,80,000, 70,000. ठीक है, टोटल मिला के 250 है. हाँ Bank overdraft, sundry credit. Bank overdraft 20,000. वेरी गुड. बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 सर, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. सभी रेटस नीचे ले लो और बैंक ओवरड्राफ्ट से 20,000 तक एक एरो डालो. सैलरी क्रेडिटर से 56,000 तक एक एरो डालो. ठीक है. हाँ Assets, plant and machinery 17,000. हाँ. फर्नीचर स्टॉक डेटर्स एंड बैंक बैलेंस है. इसमें डेबिट साइड एसेट साइड तो गुडविल है क्या? नहीं है. लायबिलिटी साइड ये रिजर्व है क्या? नहीं है. वेरी गुड. X retired on 1st January 2022. हाँ On which date R is admitted as new. सर हु इज गेटिंग रिटायर्ड? X, एक्स रिटायर हो रहा है सर. कौन आ रहा है? R. आर आ रहा है सर. ठीक है सर. रिटायरमेंट कम एडमिशन. सो व्हाट डू यू कॉल दिस? रिटायरमेंट कम. सर वन पार्टनर इज गेटिंग रिटायर्ड और वन पार्टनर इज गेटिंग एडमिटेड. ओके. For the purpose of adjusting the right as between partners, goodwill to be valued at 84,000 and sundry debtors and stock to be reduced by सर 60,000. गुडविल अमाउंट कितना है? सर 84,000. अभी इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखना है, गेनिंग रेशियो देखना है. ठीक है. गुडविल अभी एक्स को देना है. ऐसा ना, इधर देखो, एक्स को गुडविल देना है. ये सब आर गुडविल लेके आना पड़ेगा. ये सब सर. बट इन दिस सम ना आर गुडविल के बारे में बात ही नहीं की. लेकिन ऊपर जो बोला है, फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टिंग द राइट्स ऑफ बिटवीन पार्टनर्स गुडविल इज वैल्यूड. इसका मतलब है जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा एज रिटायरमेंट और एडमिशन, गुडविल सब पार्टनर बेयर करना पड़ेगा सर. लेकिन इस केस में सर गुडविल का आर से कुछ लेके नहीं आ रहा सर. हाउ डू यू? नीचे देखो, आर इज टू ब्रिंग इन 1 लाख इन कैश एज हिज कैपिटल ऑन द डेट ऑफ एडमिशन. ये सब गुडविल के बारे में बात ही नहीं किया है. ये सब. So here as per sum, if you go as per the sum, you can draft a note. We have ignored goodwill treatment with respect to R. ये लिख सकते हैं. ठीक है. रेशियो दिया है कि नहीं वो हमको मैटर नहीं करेगा ना. अगर रेशियो नहीं दिया तो क्या होगा? रेशियो दिया है क्या? एक बार पूरा पढ़ लो, पूरा सम पढ़ लो. Goodwill to be valued at 84,000 Okay. and sundry debtors and stock to be reduced by सर सन्ड्री डेटर्स ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड ये क्या है? रीवैल्यूएशन. वेरी गुड. रीवैल्यूएशन. हाँ reduced by 60,000 and 1 lakh. respectively. हाँ. X is to receive 44,000 in cash on the date of retirement. सर एक्स इज टू रिसीव 44,000 इन कैश ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट. सर उसका कैपिटल बैलेंस कितना है हमको पता नहीं. ये सर कैपिटल बैलेंस से उसको कितना पेमेंट कर रहा है? 44,000 सर. आपका बैलेंस क्या होगा? And the balance going to be हाँ. will remain as loan as 8% per से फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग सम फिगर. हाँ सर 2 लाख अगर पेमेंट करना है टैक्स को रिटायरमेंट के दिन में, तो उसमें से 44,000 क्या कर रहा है? कैश में पेमेंट कर रहा है. सर बैलेंस कितना है? 1,56,000. सर 1,56,000 लोन में जाएगा. समझ आ रहा है? तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं. 2 लाख मैं नॉर्मली बता रहा. ठीक है. हाँ remain as loan as 8% per annum. हाँ. Repayment of loan to be made at the end of each year by annual installment representing 25% of the future profit before charging interest. सर वो लोन
फ्यूचर प्रॉफिट कितना है उसमें से 25% हमारा इंस्टॉलमेंट होगा, वो बोल रहे हैं। सर फ्यूचर प्रॉफिट दिया है कि नहीं, बट देखिए देखो R is to give 1 lakh in cash as his capital on the date of admission. हाँ The new partners are to share profit and losses equally after paying. सर न्यू पार्टनर्स कैसे शेयर करेगा? Equal. Equally sir, 1:1:1, nothing but Y, Z and R, 1:1:1. Clear sir? The net profit for the year ended 31st December 2013 is 64,000. सर 64,000 दिया है सर, ये कब का प्रॉफिट है? Before taking into account the installment paid. हाँ हाँ हाँ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड व्हाट 31st December 20 2013. 13 नहीं है, वो 2022 लिखो, उसको 30 नहीं है, 2022 प्रिंटिंग मिस्टेक। सर 1 जनवरी पे हमको बैलेंस शीट दिया है, 31 दिसंबर में हमको प्रॉफिट दिया है, ये करंट प्रॉफिट है, फ्यूचर प्रॉफिट है। सर कब रिटायर होगा वो तो बताओ। 1/1/22। सर ये प्रॉफिट जो दिया है 2022 64,000, ये रिटायरमेंट के बाद है, रिटायरमेंट के पहले का? बाद का। सर नथिंग बट आई कैन टेक दिस एज फ्यूचर प्रॉफिट, यस और नो? सर फ्यूचर प्रॉफिट मुझे मिल गया 64,000। नाउ कैन यू टेल मी द इंस्टॉलमेंट अमाउंट? वेरी गुड, 64,000 into 25% सर, 25% इज नथिंग बट 1/4। सर 1/4 होने से कितना होगा? 16,000। सर इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है? 16,000 सर। दिस इज वन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन दिस सम। ऊपर लिखो इंपॉर्टेंट में फर्स्ट पॉइंट, लोन इंस्टॉलमेंट अमाउंट, फाइंडिंग लोन इंस्टॉलमेंट अमाउंट। बुक में नोट कर रहे हैं ना भाई, बाद में बुक आएगा ना, उसमें सब को फिर बाद में उसमें नोट कर लेना, ठीक है? हाँ 16,000 है सर। इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है सर? 16,000। You are required to show profit and loss allocation account for the year ended 31st December 2018. 21 दिया है क्या? ये एक्चुअली 2022 दे रहा है। 31 दिसंबर 2022 लिखो, क्योंकि आंसर में देखो क्या दिया है, पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2022, ठीक है? इसलिए 2022 है। Capital account of the new partner. सर कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कौन है? YZR। हाँ एक्सेस लोन अकाउंट। सर एक्सेस लोन अकाउंट क्यों? हाँ बिकॉज 44,000 ही सेटिंग कर रहा है, बाकी अमाउंट कहाँ जाएगा? लोन अकाउंट। सर नथिंग बट एक्स कैपिटल अकाउंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा, ओपनिंग करो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डालो, गुडविल का शेयर डालो, ठीक है? बैलेंस करो, कितना आएगा उसमें से 44,000 पेमेंट करो, बैलेंस कितना बचेगा लोन अकाउंट में। क्लियर है सर? क्लियर है? हाँ ठीक है। इसमें अभी ये एक पॉइंट है, इसमें दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ सर, इसमें R is to bring in 1 lakh बोला है सर, गुडविल के बारे में बात नहीं किया, इसलिए इस समय इग्नोर किया है, लेकिन जनरली ये नहीं होता सर। अगर 1 लाख लेके आ रहा है तो 1 लाख से रिकवरी कर लेते हैं, ठीक है? उसका शेयर तो आपको लेना पड़ेगा ना, तो गुडविल तो वो कल बेनिफिट अप्लाई करेगा गुडविल पर। इस सब में वो लिया नहीं है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें नोट डालना पड़ेगा एडिशनल। सर गुडविल treatment with respect to R has been ignored due to insufficient information, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देख लीजिए R का गुडविल कहीं पे कैलकुलेट नहीं किया इसे। अब देख लीजिए सम देख लीजिए, ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाइए, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा ना सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट क्या होगा? ऑल लॉसेस, क्रेडिट क्या होगा? ऑल इनकम्स। यस सर, इसमें कुछ नहीं है, गुडविल अकाउंट लेके गया सर, गुडविल अकाउंट इसमें डाल दिया सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? सर ट्रीटमेंट सेम है सर। 84,000 एक्स का
86,000 में 36,000 सर इनडायरेक्टली 36,000 को एडजस्ट करेगा सेम ही होगा ठीक है ठीक है लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले लिया मतलब बैलेंस शीट में एसेट से जाएगा ये गलती है देखिए क्योंकि कौन सा गुडविल लिखा है बैलेंस शीट में व्हाट गुडविल इज टू बी शोन इन द बुक्स ओनली हां सेल्फ जनरेटेड शो नहीं करेगा परचेज में गुडविल शो करेगा ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल इस सब में देखो गुडविल भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले लिए इसका मतलब है गुडविल एसेट से जाएगा ऐसा तो सर ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं मैं बोल रहा हूं ठीक है गुडविल को एसेट जैसे ट्रीट किया है डायरेक्टली ऐसा गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है ऊपर लेकिन ये लोग गुडविल बोल के 84,000 क्रेडिट किया है नथिंग बट गेन ऐसा ना इधर क्रेडिट किया मतलब एसेट से जाएगा ऐसा ना तो एसेट से जाएगा तो इसका मतलब है सेल्फ जनरेटेड गुडविल ट्रीटमेंट रॉन्ग है ठीक है आर का गुडविल ट्रीटमेंट नहीं दिया है इधर गुडविल बुक्स में लेके आए ये दो रॉन्ग है सही ट्रीटमेंट क्या होगा 84,000 में एक्स का शेयर कितना है वो देखो ठीक है कितना 36,000 सर एक्स कैपिटल को क्रेडिट करना है वाई एंड जेड को डेबिट करना है इन द रेशियो गेनिंग रेशियो वेरी गुड ओके सर बाद में आर का शेयर कितना है सर गुडविल में हाँ सर आपका टोटल गुडविल कितना है 84,000 ना आर का शेयर कितना है इधर देखो 1/3 सर 1/3 84,000 में 1/3 कितना है 28,000 सर 28,000 आर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा किसको क्रेडिट होगा वही ऑप्शन किस रेशियो में सैक्रिफाइस रेशियो को फाइंड आउट करना पड़ेगा ठीक है कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे सीधा नहीं बोल सकते क्योंकि पहले और अभी की सेम नहीं है समझ गया सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर दिस शुड बी द करेक्ट ट्रीटमेंट गुडविल बुक्स में नहीं लेके आना सर अगर गुडविल में आपको कुछ डाउट होने से इसलिए नोट लिख दीजिए क्लियरली गुडविल इस केस में वो लिया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुझे डर लग रहा है सर एक सम में ले रहा है एक सम में नहीं ले रहा है लेकिन एक्चुअली नहीं ले रहा है एज पर एज 26 इंटरनेशनल नहीं ले रहा है ठीक है सर आप मेंशन भी कर सकते हैं एज 26 से 26 रिपेयर ठीक है 20 एज पर एज 26 लिख दो सेल्फ जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी शोन इन द बुक्स ओनली परचेज गुडविल शोन इन द बुक्स ठीक है इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट ले लिया मतलब बैलेंस शीट में जाएगा तो बैलेंस शीट में जाएगा मतलब वो सब जन है वो ट्रीटमेंट रॉन्ग है ठीक है सर तो ये 84,000 क्रेडिट किया और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को किसको शेयर किया सर गुडविल क्रेडिट किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट और लॉस किसको शेयर किया रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस सर क्यों है क्या उसमें नहीं है तो फिर मतलब क्या है क्यों से गुडविल नहीं ले रहा है दैट इज रॉन्ग ट्रीटमेंट समझ आ रहा है क्यों बोल रहे बुक में गलती है सर ठीक है तो इसको इसलिए इसकी वजह से समझ जाना मैंने जो बोला उसके हिसाब से जाना कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है गुडविल ट्रीटमेंट क्रेडिट डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट से सिमिलर टू अर्लियर सब ठीक है और बाकी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग 84,000 नहीं होगा तो पूरा डेबिट ही है डेबिट 16 डेबिट 12 तो लॉस होगा रिवैल्यूएशन लॉस शेयर कर दीजिए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ठीक है गुडविल दोनों को एक्स को दे दीजिए वाई जेड बेयर करेगा आर से ले लीजिए वाई जेड ले लेगा तो ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ठीक है लोन का क्या है प्रोसेस वो देख लीजिए अभी एक्स लोन अकाउंट सर एक्स लोन अकाउंट मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर होता है जैसे दिस बैलेंसिंग फिगर इज रॉन्ग बिकॉज़ द होल एडजस्टमेंट्स आर रॉन्ग ठीक है
ओपनिंग कैपिटल अकाउंट ले लो, रिवैल्यूएशन लॉस होगा, लॉस डेबिट साइड में जाएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ठीक है। और गुडविल का भी एडजस्टमेंट दे दीजिए, उससे ले लीजिए, इसको पेमेंट कर लीजिए, ऐसा बैलेंस में 44,000 लोन दे दीजिए, बाकी जो है वो सब लोन में जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर। सर लोन इंस्टॉलमेंट कितना है वो तो एटलीस्ट दे दीजिए, लोन अकाउंट में जाओ, टू बैंक अकाउंट 16,000, सो दिस इज द लोन इंस्टॉलमेंट अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन में जाओ, प्रॉफिट कितना है किया 64,000, यस और नो, दिस इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, यस और नो, वो क्लियरली मेंशन किया सम में। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 16,000, दिस इज एक्चुअली लोन अमाउंट, टोटल इंस्टॉलमेंट है, ओके। तो बैलेंस जो है वो प्रॉफिट शेयर का है, ठीक है सर। ठीक है सर, ये कैपिटल अकाउंट्स में थोड़ा गड़बड़ होगा, वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हाँ समझ गए ना। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 14 सर, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ना, गुडविल अकाउंट बुक्स में लेके नहीं आना है, तो एज एन दीजिए क्योंकि सब्जेक्ट में रिड्यूस ना भी सुनना है, ठीक है। मैं 50 भी मैंने समझा दिया था सर, 15 मैंने समझा दिया, 16 17 होमवर्क ले लीजिए। 16 17 होमवर्क ले लीजिए, ठीक है सर। ये डन रिटायरमेंट सर, एडमिशन रिटायरमेंट में मेन डिफरेंस क्या है? क्या क्या? हाँ पे करना पड़ेगा सर, दैट इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। और टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्रॉफिट अगर देगा तो प्रॉफिट भी पेमेंट करना पड़ेगा, ये दो मेन चीज है सर। एडमिशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एडमिशन में जिस दिन से एडमिट करेगा बाद में ही प्रॉफिट मिलेगा उसको, लेकिन रिटायरमेंट में एडिशनल पॉइंट ये है सर, कैसे पेमेंट करेगा, सेक्शन 37 सर। पेमेंट अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, 6% इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट व्हिचएवर इज हायर पेमेंट करना पड़ेगा पार्टनर को, ये एक पॉइंट है रिटायरमेंट में जो डिफरेंस। दूसरा पॉइंट है जो सही बोला है, टिल डेट प्रॉफिट देना पड़ेगा, टिल डेट, ठीक है। अगर मान ईयर एंड में कर रहे हो तो P&L अकाउंट जो करेगा, ईयर बिटवीन में कर रहे हो तो P&L सस्पेंस करेगा, ठीक है, ठीक है। सेम एडजस्टमेंट, एडमिशन और रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट सेम है क्या, कौन सा सेम है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब सेम है। गुडविल सेम है, गुडविल ट्रीटमेंट सेम है एडमिशन रिटायरमेंट में, मतलब जो बेनिफिट हो रहा है उसको देना पैसा, समझ गए, समझ गए। गुडविल सेम है, रिवैल्यूएशन सेम है, ठीक है, समझ गए ना। जेएलपी अभी तक आया नहीं, आएगा क्वेश्चन में तब मैं बता दूंगा, डेट में आएगा तब मैं जेएलपी कैसे ट्रीट करना है मैं बताऊंगा। ऑलरेडी हमने जेएलपी कैसे ट्रीट करना है हमने ऑलरेडी देख लिया सामने, जेएलपी ट्रीटेड एज एसेट नॉट ट्रीटेड एज एसेट, समझ गए। एलएलपी एक छोटा सा समझ है, अगर आपका लक अच्छा होगा तो पार्टनरशिप से एलएलपी से सम आएगा वेरी इजी, सिर्फ बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करना है, लेकिन फॉर्मेट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखो, ठीक। एलएलपी हो गया, जेएलपी हो गया, 4.1 हो गया, 4.2 हो गया रिटायरमेंट, ठीक है। 4.2 व्हाट इज द जेएलपी, 4.4 जेएलपी, 4.8 एलएलपी, 4 चैप्टर हो गए। कल डेथ देखेंगे, डेथ ऑफ द पार्टनर, ये डाउट्स तीनों की कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जरा, इजी हो जाएगा, जैसा भी समझेगा, जितना भी आएगा उतना तक करके आएंगे। पूरा अगर डाउट लग रहा है तो सम मत छोड़ना, एटलीस्ट अगर सम अगर तक दिया है एटलीस्ट गुडविल कैलकुलेशन तक करो, बाद में समझ में नहीं आया छोड़ दो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट तो कर लो। सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू फाइंड आउट करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो करना, गेनिंग रेशियो करना, वो सब एटलीस्ट जितना तक आएगा उतना तक कर लो।
गुडविल कैलकुलेट करना, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डालना, क्रिएट करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्राफ्ट करना, लॉसेस डेबिट इनकम स्टेटमेंट, सर जितना तक आए उतना करना करो। सर कैपिटल अकाउंट स्कोर हो, डेबिट बैलेंस रखो, प्रॉफिट शेयर करो, इतना करो। सर कैपिटल एडजस्टमेंट्स कैसे करना समझ में नहीं आया, एटलीस्ट खोल के एटलीस्ट उधर दिखा के आना आधा सर, छोड़ के मत करना। मैं बोल रहा हूँ आधा मत करके, अगर आएगा तो अच्छे से कर लो पूरा, लेकिन जितना तक याद है उतना तक एटलीस्ट कर लो, समझ गए? ठीक है, हाँ कल 10 बजे लेंगे, ठीक है।